तो गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है अकल बड़ी या भैंस। ये है हमारी अकल और ये है हमारी भैंसिया। तो सीन क्या है, एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ी भैंस होती है और वो खुल जाती है। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे कोई पकड़ो इस गाय भैंस को, अरे कोई पकड़ो। अरे कैसे पकड़ो? अरे कोई तो पकड़ो इसको, कुछ करो। लेकिन इतनी बड़ी भैंस को पकड़ेगा कौन? अरे ताकत से नहीं, अकल से पकड़नी है। रुको मैं बताती हूँ कैसे पकड़नी है। अरे भागो भागो भागो। आजा, ले 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 ये हमने भैंस को पकड़ लिया। तो इसीलिए कहते हैं ताकत से नहीं, अपनी अकल लगाइए और अकल से पकड़िए भैंस को। धन्यवाद। Hello and good morning everyone. So I am here to present idiom that is हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और. So let's talk about it. हाथी के दांत दिखाने के. Let's talk about it first. So it means a person has different personalities. First of the personalities is form a personality that he wants to present and show everywhere, that wherever he goes he wants to present that personality and want to show that he is the person that have that kind of personality or that kind of behavior he or she has. So let's begin with the dikhane khane ke daant. So here what the person is, he whether he wants to share his personality or not, but what according to me that he don't want to share that kind of behavior or that kind of personality what he has or he has inside it. He wants to keep it within him or within her. That's it. Thank you. My name is Abhi. Today I want to talk about buffalo or brain. Which one is great? It sounds like very funny, but it's a topic of the moral of our life. It's a lesson to learn. In these two things we can bifurcate by a simple points. Okay, obviously we are humans. Our brain is great. We can establish our brain as a great than buffalo. But when we talk about uses, okay, they have individual identity of buffalo. Buffalo uses something different. It give milk like that. But when you're talking about greatness is a kind of the words of like intelligence, creativity, like this. Human brain is so far greater than anything. It's the most powerful nation in the world. Human brain create something which is beyond the God's creation. When we talk like about civilization, we are like starting from element stage, and after the civilization takes to somewhere to the at present what we enjoying the availability because of single thing called human brain. So when we talk of the greatness, human brain, there's no comparison. Just hands down, human brain is greater than everything, not only buffalo brain or any creature also. Finally, human brain and humans are greater. That's it. Bye. हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो आज हम एक इडियम के बारे में बात करेंगे जो कि हमें सर ने बताया, उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि है अकल बड़ी या भैंस। तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि आप किस तरीके से अपने ब्रेन को यूज़ करके, अपने मेंटल एबिलिटी को यूज़ करके कोई टास्क का सल्यूशन देते हैं, उसको ना कि अपनी स्ट्रेंथ्स को लगा के, अपने मस्कुलरिटी दिखा करके, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। आप कितना अपना IQ और अपनी दिमाग की शक्ति को लगा सकते हैं उस टास्क को इफ़ेक्टिवली सॉल्यूशन निकालने में। उसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं स्पोर्ट्स के सिनेरियो से। जैसे एक फुटबॉल मैच चल रहा है, उसमें एक लड़का है जो कि बहुत बढ़िया, बहुत नेशनल लेवल चैम्पियन है फुटबॉल में, बहुत अच्छा खेलता है, उसके बहुत अचीवमेंट्स हैं। तो उसका इतना गुरूर है, इतना ईगो है उस बात पे कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ कि वो एक ऐसे टीम मैच में अकेले पूरा सब मैच को अपने पूरे आखिर तक ले जाने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं ही अकेले खेलूँगा, ना कोई टीम वर्क है, ना किसी से कोलैबोरेशन है, जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे टीममेट्स को कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यही निकल के आता है कि भाई चलो तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर उतनी पावर है कि तुम वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी टीम को पीछे छोड़ दो। ऐसी दूसरी तरफ एक बंदा है जो कि नॉर्मल प्लेयर है, मीडियोकर है, लेकिन वो कोलैबोरेशन के साथ चलता है, अपनी पूरी टीम को एक करके चलता है, सबकी उनकी पोजीशंस की रिस्पेक्ट करता है, जो जहाँ पे
अच्छा खेलता है उसको वहाँ पे रखता है और स्ट्रैटेजिकली अपने प्लान्स बनाते हैं कि कैसे हम उस मैच को जीत सके, और ना ही जीतने के लिए उससे क्या सीखने को भी मिलता है वो भी उसके लिए भी मोटिवेट करे। वो एक टीम प्लेयर है और वही दर्शाता है कि कैसे हम स्ट्रैटेजिकली अपनी थिंकिंग का यूज़ करके इस मैच को जीत सकते हैं। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। बाकी होप आप लोग को अच्छा लगे। धन्यवाद। हाय एवरीवन। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव की कहानी है। गांव में एक मास्टर जी होते हैं स्कूल में, और वो एक क्लास लेने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं। तो क्लास में उनका टॉपिक होता है अक्ल बड़ी या भैंस। तो वो क्लास में पढ़ाने जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं, बच्चों अक्ल बड़ी या भैंस? तो पप्पू बोलता है सर अक्ल। तो मास्टर जी बोलते हैं प्रूव इट। तो पप्पू बोला सर एक किताब लीजिए और एक भैंस के आगे रख दीजिए, भैंस उसका कुछ नहीं करेगी। वही एक किताब अगर हम एक इंसान को देते हैं तो वो उसे पढ़ेगा, दुनिया बदल देगा। ठीक है। तो उसी समय वो बात चल रही होती है और एकदम से कहीं से क्लास में भैंस आ जाती है। ठीक है। अब भैंस आ गई, अब भैंस है तो आगे मास्टर जी हैं, डाल दिए सीन। तो वो मास्टर जी तो गए। ठीक है। अब मास्टर जी नीचे गिरे पड़े हैं। तो आगे क्या होता है, वो अब क्लास में अफरा तफरी मच रखी है, कोई टेबल पे चढ़ रहा है, कोई चेयर पे चढ़ रहा है, भाग रहा है इधर उधर। वो सब भैंस क्या करती है, मास्टर जी के टेबल पे खाना पड़ा था, वो खाना खाने लग जाती है। खाना खाती है तो पप्पू को आइडिया आता है कि वो एक रोटी लेता है, रोटी 3-4 रोटियां, और वो उसकी लाइन बना के रख देता है ताकि वो क्लास से बाहर चली जाए भैंस। ऐसे करते करते भैंस बाहर चली जाती है। उसके बाद अब चलो भैंस चली गई। अब मास्टर जी खड़े होते हैं, अपने कपड़े वगैरह साफ करते हैं, जहाँ लगी है तो करते हैं अपना। ठीक है। खड़े होके बोलते हैं बच्चों आज का प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी गलत थी। ठीक है। तो उसी समय पप्पू बोलता है सर अकल तब तक ही बड़ी है जब तक सामने भैंस ना आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्री कार्तिक है। अगर हम इस अकल बढ़िया बेस के बारे में बात करना है, टॉपिक दी चुकी है। इस अकल बढ़िया बेस में मुझे लगता है कि अकल बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है जब मैं बचपन में रहता था, जब मम्मी मुझे कुछ पढ़ाई उतना ठीक से नहीं करता था, मैं तो अरे तेरे से पालने तेरा पढ़ाई पे सब कुछ ऊपर के खर्चा करने में एक बेस खरीदे तो दूध देता है, तू कुछ नहीं दे रहा बोल कुछ कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा बोल। मुझे भी लगता है कि उस टाइम हाँ वो तो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अगर घास को लेके है तो कुछ हमको भी पानी मिलता है और दूध देती है, मज़े आते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और अच्छे से पी सकते हैं। मैंने बोला मम्मी हम लेके आते हैं। So good morning everyone, this is सूरज कुमार and today we have a task, और उस टास्क का नाम है हमारा अकल बड़ी या भैंस। तो ये सबको पता है कि हमारे दो इसमें चीज़ है, एक अकल एक भैंस। ठीक है। भैंस का सबसे बड़ा मतलब होता है ताकत। हमें हर जगह ताकत से काम नहीं, अकल से भी काम लेना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम बात करें कहीं कहीं पे जो है हमारी पावर जो है बहुत ही ज़्यादा लोग लगाते हैं, अरे हम उसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी तैसी गोली मार देंगे। लेकिन वहाँ पे अगर हम लोग अपनी अकल लगाए, शांति से बात करें, तो वो काम बहुत ही प्यार से हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अकल बड़ी है भैंस, क्योंकि भैंस के अंदर भी थोड़ी सी अकल है, लेकिन यही है कि कब हम लोग उसको लगाएंगे, सिचुएशन के हिसाब से होता है कि हमारी क्या सिचुएशन है। अब अगर जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से बाहर जाने की, तो अब जैसे कि मुझे यहाँ LPU से फगवाड़ा तक जाना है, तो वहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो मैं तो दौड़ के चला जाऊँगा पैसे बचाने के चक्कर में, लेकिन ये तो हमारा एक पावर हो गई। फिर इसके बाद हमारी अकल क्या कहेगी कि अगर थोड़ा सा टाइम बचाना है तो हम उसको जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन से जो है जा सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा अकल बड़ी या भैंस का। एंड इसी तरीके के और भी ज्ञान भरी बातों के लिए देखते रहें सूरज कुमार। Hi everyone, my name is Akshay B. Krishna, and here's an interesting thought that I came across today. When you look at an elephant, the first thing you notice is the tusks. Big, visible, impressive. That's what people see, that's what stands out. But when the elephant actually eats, works or survives, it doesn't use the tusks. It uses its teeth. The tusks are just for the show and the teeth do the real work. And honestly, people aren't that different. We spend a lot of time showing our tusks, title, brand, social media, achievements and all noise. That's the part the world sees. But what actually moves your life forward is your teeth, your skills, your discipline, your consistency and the boring work no one claps for. The mistake is thinking that the tusks are the powerful ones and they're just the display.
Real progress comes from quiet tools you use every day, even when no one's watching. So next time you feel behind because you don't look impressive enough, remember this, it's not about what you show, it's about what you use. That's all, thank you. Hi everyone, today let me show you how I prepare my comfort drink. So we start by boiling the water. See, this is one of the cheapest habits that I have that makes my day a lot better. A glass of lemon tea, that's what I'm talking about. And as for any tea, we start by boiling the water and you can rush this part. As always, heat first, answers later, right? And once the water starts boiling, we can add a bit of tea leaves, just a little bit. A little makes a big difference, you know. And I usually take this in the evening because after a hectic day of work, to relax and slow down my brain. And then next we'll add sugar. Always remember, just a bit to enhance the flavor, not to hide it, okay? And let's give it a few more minutes while everything mixes up. And that's it, it's off. So now let me pour the drink into a glass. See, now to finish it off, a squeeze of lemon. And to top it off, a piece of thinly sliced lemon piece. That's it. A simple, ordinary lemon tea. And that's the whole point, right? Cheers, guys. Kavya, let's go for a tea. Okay. Yay! Divya, चलो सो जाते हैं. Shrija, let's play a song. As you all can see, I made everyone sit with a different task and showed them that I'm a very chill, carefree person, just enjoying my life. But now, here I'm plugged in and studying on my laptop. We all have that one friend who pretends they haven't studied at all, acting relaxed and carefree. But behind the scenes, guys, the same person is quietly working hard and never tells anyone how much and when they studied. And this shows the two sides of the person's personality. In Hindi, we have an idiom, हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग. In English, it means actions behind the scenes can be different from what's shown on the surface. Bye guys. So दोस्तों, कहावत है हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और. अगर आप इस कहावत का मतलब जानना चाहते हैं तो चलते हैं राहुल की शादी में. राहुल की शादी का कार्ड मुझे भी आया और कार्ड इतना भारी था कि मुझे लगा अंदर सोना छिपा हो. पर जैसे ही कार्ड खोल के देखा तो बस लिखा था टाइम 7 बजे एंट्री और 8 बजे खाना. मतलब 1 घंटा खाली रहना पड़ेगा, वो भी क्या, भूखे पेट. उसके बाद राहुल शादी के मंडप में ऐसे खड़ा था जैसे मिस्टर इंडिया बन गया हो, पर अंदर ही अंदर सोच रहा था अब तो बस जिंदगी भर हाँ ठीक है यही बोलना पड़ेगा. शादी पर राहुल के अंकल बोल रहे थे बेटा मैं कुछ नहीं खाऊंगा. लेकिन जब अंकल की प्लेट देखी ना तो लगा पूरे मोहल्ले का खाना भर के रख लिया हो. शादी पे मंडप में पंडित मंत्र ऐसे पढ़ रहा हो जैसे वाईफाई का पासवर्ड हो, और राहुल सर तो ऐसे हिला रहा हो जैसे संस्कृत में पीएचडी कर रखी हो. राहुल की शादी में बैंड वाला ऐसे बाजा बजा रहा था जैसे लगा राहुल शादी में नहीं युद्ध में जा रहा हो. राहुल की शादी में राहुल की दुल्हन की मुस्कान 32 दांत की थी, पर राहुल की सास की मुस्कान EMI वाली. हमें इस कहावत से यही पता चलता है कि शादी में हाथी के दांत नहीं होते लेकिन कार्ड जरूर होता है, और पूरा बजट सिर्फ खाने के लिए होता है मेरे भाई. Hello everyone. Today I am talking about why elephant tusk is not used for eating and it is using its inner teeth. It is a kind of an idiom. When we hear that we feel like interesting, and it is also funny at a time. When we saw an elephant for first time, we will be thinking like it is using its tusk to eat. But in reality, it is not like that. In case of humans also, they are not showing their real personality outside. They are showing they have an inner personality. If whatever we say, that is not really our personality. Maybe some things are important and some things are they're real, but in
their inner mind also there is another personality. It is in case of elephant also, it is showing its tusk just for style, and its creature is like that. But in reality, it is eating through its inner being. I will share you a story. In a jungle, there is an elephant called Gaju and his friend were sitting. And his friend was asking, Gaju, why were you not using your tusk for anything? You can eat with that. If you eat with that tusk, you can eat a lot. Then the Gaju answered, like, if I start eating through my tusk, I will be eating all this jungle. It is only for style, not for eating. It's in case of human also like that. Everything we sow is not real. That's it. Thank you. हेलो दोस्तों, आज एक चर्चित कहावत हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अतुल की जुबानी। जैसे कि लोग कुछ दिखते कुछ और होते कुछ और। जैसे कि MBA में हम ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ब्रांडिंग हम इतनी स्ट्रांग कर देते हैं कि प्रोडक्ट अंदर से एम्प्टी निकल जाता है। जैसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल, विजनरी लीडर, स्ट्रैटेजिक थिंकर, और रियलिटी में एक्सेल सीट ओपन करने में 10 मिनट लग जाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। कुछ कंपनी एथिक्स की बात करते हैं और लेकिन इंटरनली एम्प्लॉयज स्ट्रगल करते हैं। इसलिए सक्सेस क्या है? ऑथेंटिक होना, वैल्यू मेंटेन करना और जो दिखो वही हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दिखावा नहीं, क्रेडिबिलिटी काम आती है। थैंक यू। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में लेने वाले हैं किसी का इंटरव्यू। आइए ढूंढते हैं हम किसका इंटरव्यू लें। ये खड़े हैं, आइए हम सब चलते हैं इनके पास और आज इनका इंटरव्यू लेते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? बढ़िया सर। सर क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस। सर यार आपकी घड़ी बड़ी महंगी लग रही है सर। सर कितने की है? होगी 20-25 हज़ार की। 25 हज़ार की घड़ी। सर आप ऐसा क्या काम करते हैं सर? बोला ना बिजनेस है खुद का। अरे तगड़े सर, सर तो बहुत तगड़ा बिजनेस करते हैं यार। सर की घड़ी। सर आपका वॉलेट। ये है असलियत लोगों की। तो गाइस, इस चीज से हमने ये सीखा कि दुनिया की दिखती चीज वैसी नहीं होती जैसा दुनिया दिखा रही है। इस पे मुझे एक मुहावरा याद आता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो सबक क्या है इसका? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड डोंट जज एन एलिफेंट बाय इट्स टस्क। दुनिया की पैकेजिंग तो शानदार हो सकती है, पर नीयत जानना सीखिए। स्टॉप फॉलोइंग फॉर शो एंड सर्च फॉर रियल। मेरा नाम है अनोश लाल और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चाय। तो चाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है आधा कप पानी। अभी मैं 1 कप चाय बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको लेना है आधा कप पानी। और उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको उबाल रहा हूँ, तो पानी बॉयल करने के बाद आपको इसमें डालना है अदरक। ठीक है, आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं और घिस के भी डाल सकते हैं। तो आपको इसमें डालना है अदरक। अदरक आपको बेसिकली हेल्प करती है कि जो जैसे किसी को कोल्ड हो जाता है या ठंड ज़्यादा लगती है, तो उसमें आपको अदरक हेल्प करती है। और उसके बाद आपको डालना है इसमें चाय पत्ती। चाय पत्ती आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जैसे आपको ज़्यादा कड़क चाहिए तो थोड़ी सी ज़्यादा, अदरवाइज थोड़ी सी कम, तो आपको डालना है चाय पत्ती। और उसके बाद इसको आपको पकाना है, इस पानी को जिसमें चाय पत्ती पड़ी हुई है। और मैंने बाकी सारी चीज़ें भी रख ली हैं। आपको इसमें दूध की ज़रूरत होगी और इलायची का भी ज़रूरत होगी, तो वो भी चीज़ें रख ली हैं। तो जानते हैं चाय की हिस्ट्री के बारे में, चाय कैसे बनी। तो एक चाइना में एम्परर था जो पानी उबाल रहा था, तो उसमें एक पत्ता गिर गया। उसके बाद जब उसने उसको पिया तो वो बहुत अच्छा लगा उसे, और उसके बाद वो फिर रेगुलरली उसको पीने लगा। तो जब वो उसको पीने लगा तो उसकी उम्र भी बढ़ी, उसको बहुत अच्छा फील होने लगा। तो वो जो पत्ता था जो उसके पानी में गिरा था, वो चाय का पत्ता था। तो इस तरह से चाय का आप कह सकते हो आविष्कार हुआ या चाय की रेसिपी बनी। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में तो चाय हर एक ओकेजन पे चाहिए होती है। चाहे कोई आपके घर पे आता है तो भी, सुबह का जो पहला आप ब्रेकफास्ट करते हो या कुछ भी, उसमें भी चाय चाहिए होती है। तो चाय तो इंडिया के लिए एक इमोशन है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पानी अच्छे से उबल रहा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध।
मैं 1 कप चाय बना रहा हूँ तो इसलिए 1 कप दूध मैंने डाला है, और वो जो पानी है वो पक जाएगा तो उसके बाद जो चाय बचेगी वो 1 कप ही बचेगी। तो अब हम दूध को पका लेंगे और तब तक हम बात करते हैं कि अपने इंडिया में कैसे चाय आई। तो आसाम में चाय का जो पौधा था वो मिला, उसके बाद आसाम के लोगों ने चाय की खेती करना शुरू किया, ठीक है। तो उसके बाद चाय इतनी हो गई कि उनके पास जगह नहीं थी उसको स्टोर करने की, तो जो भी लोग वाया ट्रेन या कैसे भी आते थे उन सबको फ्री में चाय वो पिलाते थे। इस तरह से भारत में चाय आई। और जो वैसे तो जो चाय का हेल्दियर वर्जन होता है वो होता है विदाउट मिल्क। चाय जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होती है और उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें होती हैं। तो वैसे तो चाय विदाउट मिल्क पीनी चाहिए क्योंकि वो आपकी हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, विदाउट शुगर विदाउट मिल्क। बट जब आप विद शुगर और विद मिल्क लेते हो तो उसका टेस्ट तो बढ़ जाता है, बट कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। बट हमारे इंडिया में तो ऐसे ही चाय पी जाती है। तो ये चीज़ है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो दूध है वो भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, उबलना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमारी चाय और पक रही है। आप चाहें तो कोई चमचा वगैरह कुछ लेकर के इसको वैसे भी चला सकते हैं, ताकि ये जो साइड में आप देख सकते हैं जो चाय लगी है ये भी इधर चली जाए अंदर ही। ये देखिए चाय में उबाल आ रहा है, चाय थोड़ा सा गिर गई है। हमारे यहाँ इंडिया में तो चाहे कोई अच्छा ओकेजन होता है, कुछ भी खराब होता है या कुछ भी होता है तो चाय तो मस्ट है। तो ये है। और सभी की चाय की रेसिपी भी अलग अलग होती है। कोई गुड़ वाली चाय पीता है तो कोई शुगर फ्री चाय पीता है, बट मैक्सिमम लोग चाय तो पीते ही हैं। और स्पेशली बरसात के मौसम में और ठंड के मौसम में चाय बहुत पी जाती है। तो ये मैं इसको साफ कर देता हूँ। चाय के साथ पकौड़ी हो गई, चाय के साथ आपका चिवड़ा हो गया, ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में स्पेशली बारिश के मौसम में बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है चाय का। और चाय आपको ना जैसे बाइक के लिए, कार के लिए ना पेट्रोल होता है, वैसे कुछ लोगों के लिए ना चाय पेट्रोल का काम करती है, जो उनको चलाने में हेल्प करती है। तो आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि चाय इज अ एनर्जी ड्रिंक फॉर अस इंडियंस। और मैंने कई बार देखा है जो लोग चाय पीते हैं ना उनको कहीं ना कहीं कॉफी से बहुत दिक्कत होती है। और चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो ना, वो अपना चाय के लिए जो उनकी लॉयल्टी होती है ना वो खत्म नहीं करते। वो भरी दोपहर में भी ना, मई जून की, उनको चाय चाहिए होती है। और स्पेशली कुल्हड़ वाली चाय। अब घर में तो खैर कुल्हड़ मुश्किल होता है तो हम तो खैर कप में ही पीते हैं, बट बाहर जो कुल्हड़ वाली चाय होती है ना उसका भी एक अलग ही इमोशन होता है। अच्छा, चाय में एक चीज और है, अगर आप उसमें चीनी पहले डाल दोगे ना तो वो चाय का जलने का डर ज्यादा रहता है। और इलायची भी आपको पहले नहीं डालनी है। इलायची जब उबलने लगे ना दूध, उसके बाद आप इलायची डाल दो तो इलायची का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब जैसे मैंने अभी इलायची डाली है तो अब इसका जो स्वाद है ना वो ज्यादा अच्छा आएगा। आप इसमें और भी अपने हिसाब से अल्टरेशन कर सकते हो। जैसे आपको मसाले वाली चाय चाहिए तो आप इसमें मसाले कई तरह के हैं वो यूज कर सकते हो। सिंपल चाय चाहिए तो आप अदरक और इलायची कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। तो ये है। और आप चाय को जितना पकाएंगे ना चाय उतनी ही अच्छी बनती है, उतनी ही थिक, उतनी ही क्रीमी, उतनी ही अच्छी बनती है। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ खांड, क्योंकि मैं थोड़ा सा शुगर कम यूज़ करता हूँ तो मैं तो खांड डाल रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, गुड़
कुछ भी बना सकते हो, शुगर फ्री, विदाउट शुगर, कैसी भी चाय आप बना सकते हो। चीनी डालने के बाद चाय को ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही पकाना है। अब आप देख सकते हैं हमारी चाय देखो कितने अच्छे से उबल रही, कितना अच्छा सा रंग आ गया है इसमें। मैंने इसमें सिर्फ 2 स्पून चाय पत्ती डाली थी, उसके बाद आप देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। आप लोग सोच रहे होगे ना मेरा कप इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि मेरे को चाय थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है। तो अब हम चाय छान लेते हैं अपनी। आप जब भी छन्नी यूज़ करें ना, हमेशा स्टील वाली यूज़ करें। ये जो प्लास्टिक की छन्नी होती है ना, ये हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं किचन में वो स्टील के हों। एल्युमिनियम और ये प्लास्टिक की चीज़ें गर्म, स्पेशली गर्म चीज़ों में ना यूज़ करें। देखिए एग्जैक्ट 1 कप चाय बनी है, ना कम ना ज़्यादा। तो ये बन गई है हमारी चाय, देखते हैं कैसी बनी है। एकदम परफेक्ट मीठा, परफेक्ट इलायची का स्वाद और अदरक का स्वाद। तो ये है हमारी चाय। Good morning everyone. Yesterday Vishal sir gave us homework about elephant trunk. Elephant trunk. We are assuming elephant are eating with trunk, and in reality it's with its teeth. As well as human has different personality outside and inside. For example, social media, they people are post different contents, and they show different kind of personalities in social media, but in reality they different. That's same as they show us outside different personality and inside different personalities. Thank you.